Namaskar, welcome to your channel Engineering Mathematics Tutorial, and in first semester we are studying trigonometry. So let's start trigonometry. I have already taught you that sin 90 minus theta, and you know also that sin 90 minus theta equals to cos theta, cos 90 minus theta equals to sin theta, tan 90 minus theta equal to cot theta, cot 90 minus theta equals to tan theta, sec 90 minus theta equals to cosec theta, and cosec 90 minus theta equals sec theta. This is you know, clear? And now this is what? So this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. It's called first quadrant. First quadrant from where to where? So it's 0 degree to 90 degree, and 90 degree in radian it's pi by 2, because pi equals to 180. So pi by 2 means 180 by 2 means 90 degree. Now this is your second quadrant. This is called what? This is called second quadrant, and second quadrant is from 90 degree to 180 degree. Is it? It's 90 degree from 180 degree. 90 degree in radian is called pi by 2, and 180 degree in radian it's pi. Now this is your third quadrant. Third quadrant from where to where? So it's from 180 degree to 270 degree, and 270 degree in radian is what? So it's 3 pi by 2. Now it's fourth quadrant, and fourth quadrant in fourth quadrant cos theta and sec theta positive, in third quadrant tan theta and cot theta positive, in second quadrant sin theta and cos theta positive, and in first quadrant all trigonometric quantities are positive. So what about cos theta here? So what about cos theta if cos theta lies in second quadrant? So if cos theta lies in second quadrant, अगर cos theta हमारा second quadrant में रहता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो वो जो भी होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि in the second quadrant we know that only sin theta and cosec theta will be positive. So if only sin theta and cosec theta will be positive, then what about cos theta in second quadrant? So in second quadrant cos theta will be negative. Similarly, if we are talking about cos theta in third quadrant, then it also be negative in third quadrant. So cos theta and sec theta is only positive in where? So fourth quadrant and first quadrant. In first quadrant all the trigonometric identity or all the trigonometric quantity are positive. Now this is your fourth quadrant, and fourth quadrant from 270 degree to 360 degree, and 360 degree is known as 2 pi. Clear? So let's start the topic. As we know that trigonometric function are periodic function. Trigonometric function are periodic function. हमारा trigonometric function क्या होता है? Periodic function होता है. Periodic function मतलब क्या? मतलब जैसे मौसम, weather नहीं, हमारा जो सीजन है वो क्या है? Periodic है. क्यों periodic है? क्योंकि वेदर, हाँ जी, हम वेदर भी बोल सकते हैं, सीजन भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा पीरियोडिक है. वाई दे आर पीरियोडिक? बिकॉज एक सीजन जैसे गर्मी का दिन है तो वो आया, एंड देन आफ्टर 1 ईयर इट अगेन कम्स. ठीक है, इट अगेन कम्स, ये फिर से आता है, देन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एवरी ईयर इट कम. तो एवरी ईयर इट कम्स, तो हर साल ये आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो वे चीजें जो एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करती हैं वैसे फंक्शंस को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है. तो इसी पे बेस्ड कुछ, सपोज साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा है, तो अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा. तो आइए हम लोग आते हैं. अच्छा, इसके लिए हमें एक चीज को याद रखना बहुत जरूरी है, और वो चीज ये है कि हमारा 90 और आपका 270 के टर्म में जो फंक्शंस हैं वो चेंज करते हैं. ठीक है, और 180 एंड 360 के टर्म में जो हमारे फंक्शंस हैं वो चेंज नहीं करते हैं. डू नॉट चेंज. आप इस चीज को याद रखिएगा कि आपका 90 और 270 का केस है तो फंक्शंस चेंज करते हैं,
मतलब साइन कॉस बनेगा तो कॉस साइन बनेगा, टेन कॉट बनेगा तो कॉट टेन बनेगा, सेक कॉसेक बनेगा तो कॉसेक सेक बनेगा। और 180 और 360 में डू नॉट चेंज, मतलब अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हमें ये हम जानते हैं, ये हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है, ये हमारा 270 डिग्री है, अगेन ये हमारा क्या है 360 डिग्री है। ठीक है, ये फिर से दोबारा से 360 पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें 90 प्लस के लिए जानना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 90 प्लस का क्या होगा। चलिए, तो हम लोगों ने अभी 90 माइनस थीटा के लिए देखा, तो अब 90 प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 90 है। ठीक है, ये हमारा क्या है 90 है। अगर हम 90 माइनस की बात कर रहे हैं तो पीछे जाएगा, 90 प्लस की बात कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो 90 माइनस मीन्स दिस क्वाड्रेंट, एंड दिस क्वाड्रेंट में हम जानते हैं ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमें वहां पर साइन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं 90 प्लस, तो ये हमारा 90 है एंड प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। किसकी बात कर रहे हैं, हमें सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि 90 के टर्म में सारे चेंज होते हैं। तो साइन 90 आपका क्या बनेगा, तो आपका साइन 90 बनेगा कॉस थीटा, कॉस 90 बनेगा आपका साइन थीटा, टेन 90 आपका बनेगा कॉट थीटा, कॉट 90 आपका बनेगा टेन थीटा, सेक 90 आपका बनेगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 आपका बनेगा सेक थीटा। लेकिन ये प्लस या माइनस, ठीक है, तो हम जानते हैं साइन 90, तो साइन का देखिए आप 90 प्लस, तो हम अच्छे से जानते हैं किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ये हमारा बात कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा साइन थीटा पॉजिटिव होता है और एक हमारा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आप साइन वाले को देखो, तो साइन वाले का आप यहाँ पर पॉजिटिव ले लो, और आप इधर आओ कॉसेक वाले का देखो, तो कॉसेक वाले को आप पॉजिटिव ले लो, तो बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, तो बाकी सारे आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इजी है ना, क्लियर। ठीक है, फिर से बता दें, 90 के टर्म में पहले हम लोगों ने चेंज किया, और फिर चेंज करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन को हम लोगों ने, साइन आपको इस साइड नहीं देखना, दिस इज योर रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका क्या है, रिजल्ट है। सो आपको रिजल्ट पे काम नहीं करना है। ठीक है, ये आपका इनिशियल केस है, ये इसमें से ये आपका क्वेश्चन है, आपको इससे ये लाना है। ठीक है, तो आप इस पे देखोगे, आप इस पे नहीं देखोगे, यू विल नॉट सी हियर। ठीक है, आप यहां नहीं देखोगे। सो यहाँ पे साइन 90 प्लस एंड कॉसेक 90 प्लस एंड ऑल दी अदर केसेस आर सो माइनस। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं साइन 180, कॉस 180, टेन 180, कॉट 180, सेक 180 एंड कॉसेक 180। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 180 और 360 में डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करता है, डू नॉट चेंज। ठीक है, तो आपका साइन 180 आपका साइन हो जाएगा, आपका कॉस 180 आपका कॉस हो जाएगा, टेन 180 आपका टेन हो जाएगा, कॉट 180 आपका कॉट हो जाएगा, सेक 180 सेक हो जाएगा, कॉसेक 180 आपका कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तो काम हो गया। अब 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट की ये बात कर रहा है, ये आपका 180 है। अब हमेशा याद रखना, जब ये माइनस की बात कर रहा है वो पीछे की बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है आगे की बात कर रहा है। मीन्स वो माइनस की बात कर रहा है मतलब वो बैकवर्ड की बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है मतलब वो फॉरवर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो 180 माइनस मतलब इसकी बात कर रहा है, और ये मतलब व्हाट, ये मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर ऑल द क्वांटिटीज आर नेगेटिव। सो साइन यहाँ इसको आप मत देखो, दिस इज योर रिजल्ट, आप इस पे काम करोगे। ठीक है, यू विल वर्क ऑन इट। सो साइन 180 ये आपका एक प्लस हो जाएगा, और एक आपका कॉसेक 180 ये आपका एक प्लस हो जाएगा, बाकी ऑल दी अदर क्वांटिटीज आर नेगेटिव। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, तो हमने हमारा 90 माइनस थीटा का हम लोगों ने पहले किया था, 90 प्लस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, अब हम 180 प्लस थीटा करेंगे। आप किस पे काम करोगे वो हम लोग देखते हैं। तो ये आपका 180 माइनस थीटा हो गया, 180 प्लस होगा, फिर 270 माइनस होगा, 270 प्लस होगा, 360 माइनस होगा, 360 प्लस होगा। ठीक है, चलिए सब पे हम लोग काम करते हैं। चलिए देन साइन 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले आप तो देखिए साइन है और 180 है। ठीक है, तो साइन और 180 है मतलब ये हमारा साइन थीटा होगा, ये हमारा कॉस 180, सो इट रिमेन्स कॉस थीटा
tan 180 means tan theta, cot 180 means cot theta, sec 180 means sec theta, and cosec 180 means cosec theta. Why? Because मैंने आपको भी जस्ट बताया कि 180 और 360 में डू नॉट चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब 180 प्लस आप नोटिस करो तो 180 प्लस क्या हो जाएगा, तो दिस इज योर 180 एंड प्लस मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे बढ़ेगा ये, तो ये 180 प्लस तो आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। सो ऑल अदर क्वांटिटीज विल बी नेगेटिव। क्लियर। अगेन हम बात करते हैं, इस पे काम करते हैं। चलिए, तो साइन 270 मैंने अभी आपको बताया था कि इन द केस ऑफ 270 फंक्शन विल चेंज। 90 और 270 में फंक्शन क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है, ठीक है। चेंज करेगा या चेंज कर जाता है। तो साइन 270 में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 270 में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 270 में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 270 में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक 270 में क्या हो जाएगा, तो इट्स कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 270 में क्या हो जाएगा, तो इट्स सेक थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होने के बाद हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा साइन। ये तो क्लियर है ना, ये कैसे हुआ पता है हमें। साइन चेंज होगा तो कॉस और कॉस चेंज होगा साइन। टेन चेंज होगा तो कॉट, कॉट चेंज होगा तो टेन, एंड सेक चेंज होगा तो कॉसेक और कॉसेक चेंज होगा तो सेक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 270 माइनस। आप ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पर, ये हमारा 270 है, ठीक है। तो 270 माइनस, माइनस मीन्स बैकवर्ड एंड प्लस मीन्स फॉरवर्ड। सो माइनस यानी कि बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स व्हाट, इट्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव। सो आप जल्दी से 10 पे आ जाओ तो ये आपका पॉजिटिव, और कॉट पे आ जाओ तो ये आपका पॉजिटिव। सो ऑल अदर क्वांटिटीज विल बी नेगेटिव। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन 270, तो सबसे पहले 270 के लिए साइन क्या बनेगा, कॉस थीटा। कॉस क्या बनेगा, साइन थीटा। टेन क्या बनेगा, तो टेन विल बी कॉट थीटा एंड कॉट विल बी टेन थीटा। सेक विल बी कॉसेक थीटा एंड कॉसेक विल बी सेक थीटा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस, तो दिस इज योर 270 एंड 270 प्लस। प्लस मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स टॉकिंग अबाउट दिस। तो अगर ये इसकी बात कर रहा है तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, तो अगर ये इसकी बात कर रहा है तो ये क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा हम जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस और सेक पे आप आ जाओ। ये आपका कॉस है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका सेक है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो ऑल अदर क्वांटिटीज विल बी नेगेटिव, ठीक है। अगेन हम इसकी बात करते हैं तो 360 में हम अच्छे से जानते हैं कि कोई चेंज नहीं करता। तो साइन 360 मतलब आपका साइन थीटा, कॉस 360 मीन्स कॉस थीटा, टेन 360 मीन्स टेन थीटा, कॉट 360 मीन्स कॉट थीटा, सेक 360 मीन्स सेक थीटा, कॉसेक 360 मीन्स कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा है, 360 माइनस थीटा। सो दिस इज योर 360 एंड 360 माइनस थीटा, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। तो बाकी सारे क्वांटिटीज हमारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटीज हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका 360 है और प्लस, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और 360 में ये चेंज भी नहीं करेगा, मतलब साइन 360 मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन 360 में आपका साइन थीटा, और ये प्लस क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अगेन कॉस 360 का कॉस थीटा प्लस, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। टेन 360 मतलब आपका टेन थीटा, कॉट 360 मतलब आपका कॉट थीटा, सेक 360 मतलब आपका सेक थीटा, कॉसेक 360 मतलब आपका कॉसेक थीटा। और ये किसकी बात कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज जो 360, ये आपका 360 है, ये लाइन आपका 360 है, प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चलिए साथ ही साथ एक और फॉर्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी भी है, कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्ट साइन 2n पाई प्लस 2n पाई मतलब जैसे मान लीजिए ये एक चक्कर, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 4 पाई, तो 4 पाई को आप 2n पाई के रूप में क्या लिख सकते हो, तो 2n की जगह में क्या लिखें, और पाई का तो पाई, ये पाई का पाई, और 2 हमें लिखना ही पड़ेगा। तो क्या लिखे कि हमारा 4 पाई बन जाए, तो ऑब्वियसली 2 लिखेंगे तो हमारा 4 पाई बन जाएगा। तो 2n पाई, तो ये आपका एक चक्कर मारेगा तो 2 पाई, ये आपका 2 पाई होता है ना 360 में 2 पाई। तो कितनी बार चक्कर मार रहा है, 2 बार, तो एक चक्कर में यहाँ, फिर 2 चक्कर में फिर से यहाँ,
तो ये आपका 2n पाई है, ये आपका क्या है 2n पाई है, तो 2n पाई प्लस थीटा मतलब ये इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मान लीजिए 12 पाई की, तो 12 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 और पाई की जगह में पाई, एन की जगह में ऐसा क्या लिखें कि हमारे 12 पाई बने, तो ऑब्वियसली 6 लिखेंगे। मतलब ये 6 चक्कर काट रहा है, मतलब 1 चक्कर 2 3 4 5 6, फिर 6 चक्कर काटने के बाद तो फिर ये इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सारे क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगे और साथ ही साथ 2 पाई का ही केस है, तो 2 पाई में कोई चेंज नहीं करेगा, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल, फाइंड साइन 210 डिग्री। मैं साइन 210 निकालूंगी और आप लोग सबका 210 निकालोगे। ठीक है, आपका होमवर्क क्या रहेगा कि 210 डिग्री ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आपको निकालना है 210। मतलब मैं साइन निकाल के आपको दूंगी, बाकी जितने भी हैं लाइक आपका कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबका आपको 210 निकालना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए तो हम बात करते हैं साइन 210 की। तो साइन 210 तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो साइन का साइन 210 आप किसके नजदीक है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है ना, क्या क्या है हमारे पास 90, हमारे पास एक स्टॉपेज 90 है, एक स्टॉपेज 180 है, एक स्टॉपेज 270 है और एक स्टॉपेज 360 है। तो 210 या तो आप इसके साथ ले सकते हो या तो आप इसके साथ ले सकते हो। ठीक है, या तो आप इसके साथ ले सकते हो या फिर आप इसके साथ ले सकते हो, अदरवाइज आप इसके साथ भी नहीं ले सकते हो, इसके साथ भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो 210 आपका आप किसी के साथ भी ले सकते हो, एज यू विश, इधर ऑफ दिस और दिस। ठीक है, 180 के साथ भी, 270 के साथ भी। चलिए हम 180 के साथ लेते हैं, तो 210 इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं 180 प्लस 30। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी 180 के साथ वही हो जाएगा, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस या माइनस, चलिए उस पर काम करते हैं। तो साइन 180 प्लस, तो 180 प्लस मीन्स आपका क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा, तो ये आपका दिस इज योर 180, दिस इज योर 180 एंड प्लस, यानी कि किसकी बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो ये 180 प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, या तो आपका 10 पॉजिटिव होता है या तो आपका कॉट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस का माइनस, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है मैंने आपको बताया था, याद करने का भी जरूरत नहीं। साइन 30 इक्वल्स टू व्हाट, साइन 30 इक्वल्स टू, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन क्लास बताया था उसी से बताया था, सबका वैल्यू, सबसे आपको साइन का वैल्यू हमेशा याद रखना है। ठीक है, आप 0 1 2 3 4 ले लो, सबको 4 से आप डिवाइड करो, मैक्सिमम यहाँ पर 4 है, 4 से डिवाइड करो और उसके बाद आप रूट ले लो। ठीक है, तो ये 0 डिग्री होता है, ये आपका 30 डिग्री होता है, ये आपका 45 डिग्री होता है, ये आपका 60 डिग्री होता है और ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका 30 डिग्री का क्या हो जाएगा 1/4 का रूट, तो 1 का आपका 1 और 4 यानी कि 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट्स 1/2। तो इस तरह से आपको बाकी सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्री का आपको निकालना है 210 डिग्री का। ठीक है, चलिए हम 2n पाई पे एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, फाइंड 765 डिग्री ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज, ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज का आपको क्या लिखना है 2n पाई लिखना है। चलिए तो करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो मैं सिर्फ साइन का निकाल के दूंगी या फिर किसी एक का, चलिए मैं कॉस का निकाल के देती हूँ, बाकी सभी को आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 765, तो 765 को आपको 2n पाई में तोड़ना है, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप 765 को तोड़ो। ठीक है, तो ये आपका 765, यानी कि हम अगर इस 765 को आप एक काम करो, डिवाइड करो
फाइंड 765 डिग्री ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज। ठीक है, तो 765 तो यहाँ पे 360 से बड़ा है, तो जब भी कोई क्वांटिटी 360, जब भी कोई एंगल 360 से बड़ा होगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसको 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 360 से बड़ा है मतलब कि हम लोग उसको 360 से डिवाइड करेंगे। तो 360 2 जा 7, 362 क्या होगा 720, तो ये आपका 45 कैरी आउट बच गया। ठीक है, तो इसको 760 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जहाँ पे 760 है वहाँ हम लिख सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 45। ठीक है, 360 इंटू 2 प्लस 45, तो 360 का मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई और इंटू 2 तो इंटू 2 प्लस 45। ठीक है, तो ये आपका 2n पाई में क्या हो जाएगा, तो 2 का 2, n के जगह में क्या है 2 और ये आपका पाई का पाई प्लस 45। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आप एक बार इसको देख लो अच्छे से। 765 को हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस 45, तो ये आपका कॉस 765 निकालना है। तो कॉस का कॉस 765 मतलब मैंने अभी जस्ट आपको क्या सिखाया, इसके प्ले आप जो भी रहे 360 से बड़ा है मतलब कि आप उसको 360 से डिवाइड करो, जो भी एंगल 360 से बड़ा है आप उसको 360 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने पे हमारा ये आ गया 360 इंटू 2 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 360 इंटू 2 प्लस 45, तो इज इक्वल्स टू कॉस का कॉस 360 का मतलब 2 पाई इंटू 2 प्लस 45, तो ये आपका कॉस का कॉस 2n पाई, तो 2n के जगह में क्या हो जाएगा 2 और पाई का पाई प्लस 45। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2n पाई प्लस थीटा। तो कॉस 2n पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी कि किसी का भी 2n पाई प्लस थीटा अगर हो, किसी का भी अगर 2n पाई प्लस थीटा हो तो इसका वैल्यू हमारा अगर कॉस है तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा cos 45 एंड cos 45 का मतलब क्या हो जाएगा, तो cos 45 का मतलब होता है 1/√2 आंसर। तो इस तरह से आपको बाकी सारे साइन 765 निकालना है, cosec 765 निकालना है, sec 765 निकालना है, cot 765 निकालना है, tan 765 निकालना है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए फॉर्मूलाज के साथ आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में।